Hello students, good morning. Students, along with invitations, replies are also asked in your exam. So students, replies that carry 4 marks is a part of invitations. Just like invitations, replies are of two types, formal replies and informal replies. देखो बेटा जो formal replies हैं they are also have two parts, two types, replies of acceptance and replies of declining. In the same way informal replies are also of two types, replies of acceptance and replies of declining. So students, through an example you will understand in a better way. Suppose A invites B in a function. It may be birthday party, celebration, marriage celebration, new year party, anyone can be. So students, in that case who is A? A is host, क्योंकि A ने B को इनवाइट किया है. अब नाउ बी विल रिप्लाई. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी रिप्लाई. देखो बेटा, वी रिप्लाइज इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ द होस्ट. जो होस्ट है ना उसकी फीलिंग को रेस्पेक्ट करने के लिए हम रिप्लाई करते हैं. ठीक है. अब ये डिपेंड करता है बी पर, विच वे ऑफ राइटिंग ही अडोप्ट्स. ठीक है. ही मे राइट आइदर इन फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग और इन informal way of writing. And students, suppose if B is ready to attend the function, he will write replies of acceptance. And suppose if B is not in a position to attend the function due to some unavoidable circumstances, he will write replies of declining. ठीक है. वो मना करने के वे में लिखेगा. ठीक है. So students, today in this video I'll tell you how to draft formal replies. Okay students, these are some tips that you will keep in your mind while drafting formal replies. ठीक है. देखो बेटा, कुछ फॉर्मल वर्ड्स हैं हमारे, काइंड इन्विटेशन, ग्रेट प्लेजर, रिग्रेट. सो यू विल यूज दीज वर्ड्स इन फॉर्मल रिप्लाईज. सेकंड, डोंट यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. स्टूडेंट्स, many times we use first person pronoun, that would be wrong. ठीक है. थर्ड जो कंडीशन है, नॉट टू बी साइन एट द एंड. जैसे हम किसी लेटर में या इनविटेशन में जैसे सिग्नेचर कर देते लास्ट में, यू विल अवॉइड सिग्नेचर. ओके. फोर्थ, सेंडर एड्रेस एंड डेट आर रिटन एट टॉप लेफ्ट हैंड. ठीक है. सेंडर एड्रेस और डेट आपको मेंशन करनी है, बस ये दो. ठीक है. यू वॉन्ट यूज रिसीवर एड्रेस, हेडिंग लाइन, नो. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं. If you follow these steps, I think you can draft formal replies in a proper way. First of all, you will write sender address. Okay. After that, you will write date. You will give content. ये सब कुछ करने के बाद you will put formal replies in a box. So students, through an example, you will understand in a better way. Okay. So students, suppose this question comes in your exam. I read the question for you. Draft a formal reply. देखो बेटा, यहाँ क्लियर लिखा है फॉर्मल रिप्लाई. एक्सेप्टिंग, आपको एक्सेप्ट करना है ऐसे वे में, एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन. आपने एक इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए फॉर्मल रिप्लाई करना है. और वो कब? ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ वरुण. वरुण की मैरिज के ओकेजन पर. वरुण कौन है? सन ऑफ मिस्टर एंड मिसिज भाटिया. ठीक है बेटा. तो मिस्टर एंड मिसिज भाटिया जो 23 रेलवे रोड पानीपत रहते हैं, उनको रिप्लाई करना है. रिप्लाई करने वाला यू आर एस के गुप्ता. तो एस के गुप्ता कौन है? सेंडर. एस के गुप्ता ऑफ इंदिरा कॉलोनी फरीदाबाद. दिस इज द सेंडर्स एड्रेस. तो सेंडर एड्रेस गिवन है हमारा क्वेश्चन में. तो हमने जैसे आपको स्टेप बताए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेंडर एड्रेस. ठीक है. और so here we will write sender address. So sender address is Indira Colony,
Faridabad. In the first line you will write Indira Colony and second line Faridabad. Students, one thing always keep in your mind that if sender address is not given in question, in case what will you do? तो बेटा आपको ऐसी सिचुएशन में you will write ABC dash dash city. Okay. After that you will draw up a single line, you will mention date. Okay. After that again you will draw up a single line. फिर आपको कंटेंट लिखना बेटा। देखो जो कंटेंट होता है ना हमारा बॉडी पार्ट है, कंटेंट के अंदर ठीक है क्या क्या चीज़ आपने इन्वॉल्व करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ए सेंडर्स नेम, ठीक है। आफ्टर दैट थैंक्स आपने लिखना है, फिर रिसीवर नेम लिखना है, फिर आपने डिटेल लिखनी है भाई इवेंट की क्या डिटेल है, और लास्ट में आपने ये बताना है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइनिंग वे में लिख रहे हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेंडर नेम लिख दिया। सेंडर नेम तो एस के गुप्ता है, मिस्टर एंड मिसिज एस के गुप्ता थैंक। यहाँ पर थैंक हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ प्लूरल, ठीक है, थैंक। इसके बाद हमने रिसीवर नेम लिख दिया मिस्टर एंड मिसिज भाटिया, ठीक है। फॉर देयर सन्स वेडिंग एस के गुप्ता मिस्टर और मिसिज, ये थैंक करते हैं मिस्टर और मिसिज भाटिया का उनके सन की वेडिंग पर। और आगे आपने पूरी डिटेल देनी 10 जुलाई 2000 ईयर जो है उसमें। दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, और वो इस ओकेजन पर ना प्रेजेंट होंगे टू विश द न्यूली वेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। दे हैव ग्रेट प्लेजर, और उनको बड़ी प्रसन्नता है इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ठीक है। तो लास्ट में आपने कोई साइन नहीं करना है, सिग्नेचर नहीं देने हैं, ठीक है। और ये इतना लिख के यू विल पुट द रिप्लाई इन अ बॉक्स। स्टूडेंट सेकंड एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू डिक्लाइनिंग। कई बार हमें रिप्लाई ऐसा करना होता है कि भाई यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू अटेंड द फंक्शन, सो शो यूर रिग्रेट। आप उसको डिक्लाइन करो, मना करो। कैसे मना करोगे? एक बार सपोज दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, तो एक बार मैं पढ़ता हूँ। यू आर रवि, ठीक है, यहाँ पर रवि सिंगल है। यू रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक इन्विटेशन मिला है फ्रॉम विजय, विजय से मिला है, ठीक है। तो विजय को लिखना है, रवि सेंडर है यहाँ पर। किस लिए? टू अटेंड न्यू ईयर्स पार्टी ऑन 31 दिसंबर 2000 जो भी है ईयर एट हिज रेजिडेंस। विजय के रेजिडेंस पर आपको बुलाया गया है 10 PM पर। तो आपने फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई करना है डिक्लाइनिंग द ऑफर, ठीक है ना। यू विल डिक्लाइन, आपने मना करना है। तो हाउ विल यू राइट? क्योंकि बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेंडर एड्रेस, आफ्टर दैट डेट और फिर कंटेंट। बस ये 3 ही तो स्टेप हैं इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन दिस वे यू विल राइट ABC डैश डैश सिटी, 1 लाइन ड्रॉप, यू विल मेंशन डेट, अगेन 1 लाइन ड्रॉप, फिर कंटेंट। कंटेंट में हमने वही लिख दिया। कंटेंट के अंदर क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो सेंडर नेम लिखते हैं। सेंडर नेम है रवि, ठीक है, रवि। फिर हमने फॉर्मल थैंक या थैंक्स लिखना है। देखो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यू विल राइट थैंक्स। सब्जेक्ट प्लूरल है, यू विल राइट थैंक, ठीक है। रवि थैंक्स। फिर रिसीवर नेम लिख दिया हमने विजय, ठीक है ना। इन ऑल द फॉर्मल रिप्लाईज यू विल एडोप्ट द सेम मेथड, ठीक है। रवि थैंक्स विजय फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड न्यू ईयर्स पार्टी ऑन 31 दिसंबर ईयर एट हिज रेजिडेंस एट 10 PM, ठीक है। तो ये लिखने के बाद जो मोस्ट ऑफ द डिटेल है ना यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। बट रीग्रेट यहाँ पर हमने क्योंकि डिक्लाइन करना है, इफ़ यू डिक्लाइन एन इन्विटेशन यू विल गिव द रीजन। ये बात ध्यान रखो बेटा। आपने लास्ट में ना ये क्योंकि ये एक्सेप्टिंग का तो है नहीं, यहाँ तो हमने डिक्लाइन करना है। डिक्लाइन करना है तो आपको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइन और लिखनी लास्ट में बस आपने। बट रीग्रेट, पर हमें अफसोस है, पर मुझे अफसोस है दैट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, कि कुछ अनअवॉइडेबल जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता ऐसे सर्कमस्टांसेस के कारण ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। तो बेटा यहाँ ही का यूज है, आई का भी हो सकता था, बट
फॉर्मल रिप्लाइज डजेंट अलाउ, ठीक है, फॉर्मल रिप्लाइज में आई और वी फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं है, इसलिए ही का यूज किया गया है। तो ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी, वो पार्टी को अटेंड करने के योग्य नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम टिप्स हाउ टू ड्राफ्ट फॉर्मल रिप्लाइज, ठीक है। ओके, थैंक्स।